Bismillahir Rahmanir Rahim. We are starting the today's session on a topic customer acquisition. We have a very expert trainer and founding member of Aspire Pakistan, a respected Mr. Kashi Ahmed, a seasoned professional in computing and specializing in chatbot and artificial intelligence, business development and growth strategy. Uh, Respected trainer will share the proven tools and tactics to help the startups and entrepreneurs effectively attract and retrain the customers in the today's fast-paced market. So, with this short introduction, he will also introduce himself. I am leaving the floor to respected Kashi Ahmed Saab. Kashi Ahmed Saab, the floor is yours. Thank you. Brilliant. Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bishali Sadi Sirli Amri Hal Uddatan Lisani Jabko Koli. First of all, thank you, Aspire, and thank you, Azhar, setting up the session and everything. So, आज का session जो है, I'll do English and Urdu mixed today. So, I'm myself Kashi Ahmed. I'll do my formal introduction shortly. आज हम बात करेंगे, I think it's the 13th or 14th session, part of the founder series, right, Azhar, about customer acquisition. और कस्टमर एक्विजिशन क्या होती है, कस्टमर किस तरह एक्वायर करते हैं और किस तरह आपके बिजनेस को ग्रो करना है. That's the topic for today that we have. To introduce myself, I'm born and raised in Hyderabad, Pakistan, then moved to Karachi, did my engineering in Sir Syed, computer engineering. I've been in business for almost 25 years. Came to US in year 2000. मेरा मास्टर्स किया वहाँ से मैंने, और उसके बाद आईटी में, टेक्नोलॉजी में, बिजनेस में, कंसल्टिंग करियर. I've done all fair share of development in all the major platforms. अपना स्टार्टअप भी कर चुका हूँ, एप्स प्रोडक्ट्स बना चुका हूँ, और पिछले ऑलमोस्ट 11 साल से इन सेल्सफोर्स in pre-sales, technical pre-sales, and managing the team of technical architect, financial services. If you want to know more about me, go to kashiahmed.com or just scan this QR code and you will know everything about me, or see my social media network where you can follow me, connect with me, and all that. तो आज का जो एजेंडा है हाई लेवल, हमारे पास टोटल 45 मिनट्स हैं. इसमें व्हाट आई प्लान टू डू इज गेट यू स्टार्टेड विद कस्टमर एक्विजिशन होती क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, उस पे उसका फनल मॉडल क्या होता है, किस तरह हम कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं, उसकी टिप्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, उसकी वैल्यू क्या है, और उसके बाद एंड में आई विल गिव यू सम रिसोर्सेज, उसको लेके आप नेक्स्ट जाए, नेक्स्ट जाके और यू कैन स्टार्ट learning more about it. अगर आप किसी स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं तो this is a very important topic about acquiring the customer and how to engage the customer. And please use the chat or Q&A for any question answer. Want to be interactive, कुछ भी I will answer this. Otherwise we will have few minutes at the end. उसमें फिर हम जना सवाल जवाब ले सकते हैं. तो कस्टमर एक्विजिशन होती क्या है, पहले तो ये. तो कस्टमर एक्विजिशन सिंपल ये कि जैसे आपने कोई स्टार्टअप है, आपको कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विसेज आप दे रहे हैं. एग्जांपल ले लें सिंपल, आप अगर आपने पेन बनाया है, राइट, कोई भी पेन है आपका और आप वो सेल करना चाहते हैं, तो पहले तो लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट क्या है. जो स्ट्रेंजर है उन्हें हम CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ज़माने में प्रॉस्पेक्ट या लीड कहते हैं, ताकि जिनको पहले अवेयर करते हैं आप कि एक्चुअली मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ, या मेरी ये प्रोडक्ट है, या मेरा ये सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है. सो गेटिंग देम टू नो व्हाट दे डोंट नो, सो फ्रॉम स्ट्रेंजर टू बिकम द इंटरेस्टेड पीपल, कि जो इंटरेस्ट हो, फिर उनको बायर में कन्वर्ट करना. और ये सब क्यों? क्योंकि एज अ स्टार्टअप, एज अ बिजनेस, जितने कस्टमर होंगे इस तरह आपका बिजनेस ग्रो करेगा. एग्जाम्पल सिंपल देख लें आप, जैसे नेटफ्लिक्स है, उसमें एड्स रन होते हैं, राइट, टू गेट न्यू सब्सक्राइबर. नेटफ्लिक्स के आप ऐड देखेंगे, किसी भी बड़ी कंपनी के ऐड देखेंगे, टू गेट द न्यू सब्सक्राइबर. व्हाई दे ऑल डू दिस? सो दे नीड टू कंटिन्यू टू ग्रो देयर बिजनेस. इसलिए दैट इज व्हाट कस्टमर एक्विजिशन इज. और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? डेफिनेटली नए कस्टमर आएंगे, ज्यादा मनी आएगी, ज्यादा ग्रोथ होगी बिजनेस की, आपका बिजनेस अलाइव रहेगा, कंपिटिटिव एडवांटेज रहेगा आपके पास, राइट. कंपटीटर को बीट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी सर्विसेज हैं इसकी सिमिलर सर्विसेज और भी हो सकती हैं. सो टू कंटिन्यू टू ग्रो एंड एक्वायर मोर कस्टमर इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस, फॉर बिजनेस ग्रोथ. क्योंकि अगर आपने स्टॉप कर दिया नए कस्टमर्स को लाना, तो स्लोली क्या होगा, इट्स गोना फेड आउट.
वाइल आपके कंपटीटर्स जो हैं वो ग्रो करने जा रहे हैं और नए फीचर्स लेके आ रहे हैं। तो इनोवेशन, एक तो प्रोडक्ट और सर्विस इनोवेशन और एक्वायरिंग न्यू कस्टमर। आप कोई भी कंपनी ले लें, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट ले लें, आप गूगल ले लें, एनीबॉडी, राइट? इवन आजकल के ज़माने में चैट जीपीटी, क्लाउड, everybody is trying to get more and more customers. So that's why it is very important for any business to grow and make money. अब देखते हैं कि एक्वायर करने का प्रोसेस क्या होता है। तो जब कस्टमर एक्वायर करते हैं तो इसका भी देयर अ मेथड टू द मैडनेस। ये नहीं है कि आपने बस जाके बातें शुरू कर दी और पहली मीटिंग में आपने बोला भाई मेरी प्रोडक्ट बाय कर लो। तो दिस इज अ वेरी हाई लेवल सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस जो जर्नी है, जिसमें आपने कस्टमर एक्विजिशन फनल इसे कहते हैं। तो पहली चीज जैसे मैं आपको बता रहा था, अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है कि आपके जो दुनिया में लोग हैं उनको ये बताना कि आपकी सर्विसेज क्या हैं, आप क्या करते हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। वो आप किस तरह करते हैं, थ्रू एड्स, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मार्केटिंग, थ्रू सेल्स, थ्रू मीटिंग्स एंड ऑल दोस। उसके बाद क्या होता है, you will, let's say you meet 100 people saw your ad, maybe out of that what happened, 50% of them like your product and they want to learn more about it. They clicked on your ad, they clicked on your website, they went there, they clicked on your video. So that means they are showing some interest. So now that someone who didn't know about it showing some interest, that becoming your prospect or lead, right? From that perspective, आपने क्या करना, now you start getting those metrics, whether आपकी website है कुछ भी है, start engaging them from that perspective. उसके बाद क्या होता है, जब engage होंगे वो, आप उनको बताएंगे आपके प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है, you will have some conversation with them. फिर उनका एक फेज आता है डिसीजन का। दे विल स्टार्ट कंपेयरिंग यू, यार ये कितने का है, और दूसरा और बंदा कौन सर्विसेज या बंदा बंदी सेम थिंग ऑफर कर रही है। दे विल कंपेयर यू फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव टू द ड्यू डिलिजेंस, प्राइसिंग पे, फ्यूचर पे, फीचर्स के ऊपर, उस पर डिसीजन लेने के लिए। नाउ दैट इज द टाइम आल्सो यू नीड टू कंटिन्यू टू एंगेज देम। जब वो डिसीजन में आ जाता है एंड दे शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं आपको, देन दे मेक अ फाइनल डिसीजन दैट अब मुझे ये बाय करना है। मैं दोबारा एग्जांपल दूंगा, जैसे नेटफ्लिक्स, नाइकी के ऐड की। आपने नाइकी का ऐड देखा, जहाँ पे आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आपने देखा जाए बड़ा जबरदस्त ऐड है। तो आप जैसे काफी लोगों ने देखा। अब आप हैं खुद एक क्रिकेटर, या आप क्रिकेट देखने के शौकीन हैं, या आपका अच्छे शूज रखने का शौक है, तो आपने क्या किया, क्लिक कर दिया इसके ऊपर। तो नाउ यू वेंट टू द सेकंड स्टेप, विजिट किया उनका स्टोर। जैसे आपने विजिट किया नाइकी का मोटरसाइकिल, समवन इज इंटरेस्टेड, आप देखेंगे कभी कभार आपको खुद बहुत ईमेल आ जाएगी, हे वी सॉ दैट यू वाज लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर shoe, there's a coupon that you can use. That's how they're trying to engage you to get you buy something. फिर आप बोलेंगे यार ये जो जूता है 5,000 10,000 का है क्या, इसके सिमिलर एडिडास का जूता कितने का है, सेम सेम मॉडल सेम, आप कंपेयर करना शुरू करेंगे, राइट? फिर आप बोलेंगे नहीं यार मेरी आपको, फिर आपने क्या, आपको लगेगा कि कौन सी कंपनी आपको रीच आउट मोर कर रही है टू कन्वर्ट यू इनटू द बायर। अभी तक आप प्रॉस्पेक्ट एंड लीड है उनके लिए, फिर आपको किसी ने कूपन भेज दिया, किसी ने आपको बेनिफिट भेज दिया, इनेबलमेंट कर दी, तो देन यू मेक अ डिसीजन एंड बाय दैट। तो दोज आर द 4 स्टेप, हाई लेवल, देयर आर मोर स्टेप्स इन देयर। सारे कंपनीज के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, हर कंपनी के, और डिफरेंट फनल होती है उनमें, इसमें अब सब स्टेप्स भी आएंगे। हाई लेवल, अगर आप स्टार्टअप हैं, रिमेंबर दीज 4 स्टेप्स एंड देन यू बाय द प्रोडक्ट। नाउ अब ये देखते हैं कि how do we get new customer? Before I do that, everyone so far with me, आप एक emoji teams में react का option है, जो give me a thumbs up or thumbs down if everybody with me what customer acquisition is and why it is important. या chat पे लिख के बोलें, okay, I am seeing some thumbs up. Alright, so now high level हमने देखा है कि customer acquisition क्या है, क्यों important है। अब हम देखते हैं कि हमें नए customer हम ला कैसे कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं नए कस्टमर लाने के, स्पेशली आजकल के डिजिटल एज में जो हम रह रहे हैं, राइट? यू ऑल नो एवरीबडी हैज अ मोबाइल फोन एंड ऑनलाइन एंड सोशल नेटवर्क। सो ऑनलाइन एड्स, काफी लोग हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, गूगल के, टिकटॉक के, फेसबुक मेटा का जो बिजनेस आपका मैनेजमेंट का है, दे पुट डिफरेंट एड्स देयर, अपनी वो पोस्ट को बूस्ट करते हैं। काफी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे, आपने शेयरिंग की है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के थ्रू भी करते हैं। आपको पता है कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दे हैव millions of subscribers, they actually take money to promote your product, तो उसकी रीच होती है। तो हम पहले स्टेप पे कि एंड इट्स वर्थ स्पेंडिंग द मनी, और ये जो हम मनी स्पेंड कर रहे हैं, यू टू कीप ट्रैक ऑफ दिस, बिकॉज जो कस्टमर एक्विजिशन हम कर रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट इट, हर कस्टमर एक्विजिशन के कॉस्ट है।
उसका आपको कंपेयर भी करना है। हम लोग काफी लोग होते हैं जब स्टिंजी जाते हैं और इन चीजों पे फोकस नहीं करते। सेल्स एंड मार्केटिंग इज अ important engine to grow your business. So put a budget कि मैं 500 रुपीज पर डे के हिसाब से, या मैंने 5,000 का बजट रखा है, 10 दिन तक मैंने फेसबुक का ऐड चलाना है, मैंने गूगल का ऐड चलाना है, उसको थोड़ा सा आप जो है ना टारगेट करें मार्केटिंग में, अपनी टारगेट ऑडियंस देखें, कीवर्ड्स देखें, डू दैट पॉइंट ऑफ व्यू। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, सोशल मीडिया पे शेयरिंग करें, यू विल गेट नोटिस बाय इन्फ्लुएंसर और नेटवर्क बाय पीपल रीशेयरिंग इट। और जो भी आप ये कर रहे हैं यहाँ पे भी ये कलेक्ट ईमेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एवरीबॉडी सीन माय स्क्रीन? आपने बोला इंटरनेट प्रॉब्लम बता रही है। It's fine, sir. Carry Okay. on. या सो ईमेल कलेक्ट करना एज बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क, ताकि आप उनको फिर रीच आउट कर सकते हैं। यू कैन सेंड देम द स्पेशल ऑफर्स, कूपन, जैसे मैंने नाइकी की आपको एग्जांपल दी। तो दोज आर द सम मेथड दैट यू कैन डू। अनदर वन इज आपकी अपनी कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बिजनेस है, आपके पास ब्लॉग नहीं है, आपके पास वेबसाइट नहीं है, आपके पास यूट्यूब चैनल अपना नहीं है, वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू दैट सही है कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं। आजकल एआई के थ्रू एक क्लिक में वेबसाइट बन जाती है, ब्लॉग बन जाता है, फ्री की होस्टिंग हो जाती है, अपना डोमेन हो आपके पास। ईमेल भी अगर आप सेंड कर रहे हैं, डोंट यूज हॉटमेल, जीमेल एंड ऑल दोस। गूगल 5 डॉलर में, 10 डॉलर में आपको, जो कि आपके 1,000 रुपये बनते हैं महीने के, आपके जो है ना वो आपको आपके डोमेन का ईमेल देता है गूगल वर्क स्पेस। आई विल हाईली हाईली रिकमेंड, जो भी बंदा स्टार्टअप में है, गूगल वर्क स्पेस का एक अकाउंट ले लें, उसमें काफी एलियासेस बन जाते हैं, सेल्स का, एचआर का, सारे। इट लुक्स प्रोफेशनल फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। एआई को यूज करें अपने कंटेंट राइटिंग के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, तो लुक प्रोफेशनल। स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, आपकी कीवर्ड अच्छे यूज होने चाहिए। एग्जांपल जैसे एक बेकरी है, वो पोस्ट करती है हाउ टू बेक अ केक टू गेट मोर विजिटर टू द वेबसाइट। आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए, हर बंदे का अपने कॉर्पोरेट का यूट्यूब चैनल होना चाहिए जिसमें हाउ टू वीडियोस हैं या यूजफुल वीडियोस हैं जो आप उन लोगों को दें। फिर एसईओ करें, एसईएम करें अपनी वेबसाइट पे गूगल के साथ। रेफरल दें, जो आपके कस्टमर्स हैं, ब्रिंग गिव देम द रेफरल अमाउंट। टेल योर फ्रेंड अगर आपने 5 कस्टमर या लीड भेजे तो आपको हम 100 रुपए का, 1,000 रुपए का क्रेडिट दे देंगे, या आपको 1 मंथ फ्री दे देंगे। इस तरह के प्रमोशन करें जिससे आपका वर्ड ऑफ माउथ आगे जाए। तो कंटेंट स्ट्रेटेजी, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम द वेबसाइट, आपके वेबसाइट पे आप सिंपल सर्च करें, गोडेडी कर लें, विक्स कर लें, विक्स को परचेज कर लिया गोडेडी ने, आप उधर जाएंगे, फ्री में वेबसाइट बन जाती है आपके 1 क्लिक के अंदर, ठीक है ना। आई थिंक किसी ने सवाल पूछा उसके अंदर, तो उस लिहाज से तो these 6 things I would recommend when you do this। तो आप जो पहला फेज है अवेयरनेस का, उसको हैंडल कर रहे हैं और लोगों को एंगेज करना शुरू कर रहे हैं। दैट्स हाउ यू स्टार्ट एक्वायरिंग द कस्टमर, ठीक है। अच्छा जी, एडिशनल टिप्स उसके बारे में हम आप करते हैं गेटिंग कस्टमर के बारे में। पहले तो आप जब आप कस्टमर से बात करें ना, डोंट ट्राई टू जस्ट पिच योर प्रोडक्ट कि यार ये बाय कर लो, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विस है, मुझे हायर कर लो, ठीक है ना, ये चीजें कर लें। नो, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वो है कौन, व्हाई दे वांट टू लर्न अबाउट यू। इसे हम अपनी जबान में कहते हैं डिस्कवरी करना, ठीक है ना। फर्स्ट स्पेंड टाइम डिस्कवरी करने की कि वो उनका बैकग्राउंड क्या है, why they are interested in the product, why they are looking at you, what is their business process, सही है ना। एग्जाम्पल जैसे आपके पास जिम है, तो जिम जो है वो शुड टारगेट पीपल फॉर 20 to 40 year old, right? They are going to it and don't guess what they want, ask and research, that is very important। सही है कि आप प्रिपरेशन, एक मैं आपको सबको बोलूंगा, whenever you are meeting any customer, prospect or anyone, do a little bit preparation time, spend half an hour learning about them, research them on social media। आजकल बहुत सारे टूल्स हैं आपके पास जो आपको काफी इंफॉर्मेशन लोगों के बारे में दे देते हैं। डू दैट रिसर्च एंड व्हेन यू गो प्रिपेयर इन फ्रंट ऑफ देम, यू आर मोर वैल्यूएबल एंड ट्राई टू सेल बेस्ड ऑन द वैल्यू, राइट। सो वैल्यू के ऊपर सेल करें, फीचर्स के ऊपर सेल नहीं करें कि मेरी ऐप, मेरी स्टार्टअप या मेरी सर्विसेज ये करती है। फोकस करें हाउ कैन इट हेल्प देम इन देयर बिजनेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और फर्स्ट गिव बिफोर आस्किंग इट। हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग आस्क करना शुरू कर देते हैं, मुझे सेल्स दे दो, मेरा चीज बाय कर लो।
पहले गिव करो, ओके आपकी प्रॉब्लम क्या है, अच्छा इस तरह हो सकता है, कुछ फ्री एडवाइस दें, फ्री सैंपल्स दे दें, डेमो दें। इसे हमारी जबान में एक और चीज बोलते हैं प्री सेल्स के अंदर, बी ए ट्रस्टेड एडवाइजर। ट्रस्टेड एडवाइजर क्या है? तो यू बिकम देयर पार्टनर, नॉट द सेल्स पर्सन, राइट? यू आर रियली इन्वेस्टेड इन उनकी सक्सेस के अंदर। और लॉन्ग टर्म थिंक करें, शॉर्ट टर्म नहीं कि यार मैंने एक बार एक सेकंड में मैं 1000 के बजाय मैं 5000 बंदे से ले लूं और ताकि मेरा हो जाए, वो अगले साल आपका सर्विस या आपकी प्रोडक्ट है ना खत्म कर देगा। डिस्काउंट देना है दे दें, बिल्ड अ रिलेशनशिप विद देम। सर्विस और सेल करने के बाद काफी लोग एक मिस्टेक करते हैं, प्रोडक्ट सेल होगी उसके बाद भूल जाते हैं बंदे को। इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्री सेल के जबान में से कहते हैं सक्सेस मैनेजर्स, ठीक है ना, कस्टमर सक्सेस ग्रुप्स, समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपने किसी बंदे को असाइन किया हुआ है टू मेक श्योर कि आपके कस्टमर ने जो प्रोडक्ट या सर्विस बाय की है दे आर हैप्पी विद दैट और वो उसको यूज कर रहे हैं, और उनके कोई क्वेश्चन है, ट्रेनिंग चाहिए, आप उसको बकायदा सर्व कर रहे हैं। तो मेक श्योर यू डू दैट पार्ट आल्सो। तो दोज आर सम ऑफ द टिप्स दैट यू शुड डू। एडिशनल वन इज, जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, राइट, और आप सोशल मीडिया पे ऐड डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये देखें, ए बी टेस्टिंग करें, कौन सा थंबनेल वर्क कर रहा है, कौन सा थंबनेल वर्क नहीं कर रहा, कौन सा मेरा ऐड वर्क किया, कौन सा ऐड पे व्यू ज्यादा है, कौन सा ऐड पे व्यू ज्यादा नहीं आए। ये मैंने ऐड इस ऑफर के साथ डाला था, इधर मैंने ये कलर स्कीम यूज की थी, विच वन इज वर्किंग विच वन इज नॉट। तो मेजर करें जो चेंजेस आप कर रहे हैं एंड प्ले विद इट। हमारे लोग क्या होते हैं, डाल देते हैं, फिर बोलते रिजल्ट नहीं आ रहा। कंपेयर इट, अगर आप से फेसबुक की एग्जांपल लें, मेटा बिजनेस स्वीट की, आप एक्चुअली उसमें सर्च कर सकते हैं कि आपसे सिमिलर ऐड बाकी कंपनीज के कैसे है। उसमें रिसर्च करें अपने कंपेटिटर का, देखिए कौन सा ऐड उनका चल रहा है, कौन सी हेडलाइन चल रही है। ट्राई मल्टीपल हेडलाइंस, ट्राई डिफरेंट क्लिक्स एंड डू द मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स। उसको देखें, लुक करें, व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग, एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो दो आर द फ्यू टिप्स कि आपने कस्टमर किस तरह एक्वायर करना है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। अब हम जाएंगे कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है। बिफोर आई मूव देयर, एनी क्वेश्चन ऑन कि कस्टमर एक्विजिशन क्या होती है, किस तरह की जाती है, और रिगार्डिंग एनी वन ऑफ दिस टिप दैट आई जस्ट मेंशन, फील फ्री टू कम ऑफ म्यूट और चैट में बोलें, हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन। नो वन? अगर कोई भी नहीं है तो हम पिक कर लेंगे किसी को सवाल पूछने के लिए। Anyone have tried, let me ask you that, anyone has tried one of these tricks or tips or method, what worked for you, what did not work for you? Anyone want to share? कि किसी ने सारी चीजें कोई ट्राई की हैं, क्या चीज उनके लिए चलिए, फेसबुक एड वगैरह उनके लिए चले हैं या गूगल एड्स वगैरह या नहीं चले? I think, thank you very much for the very useful session. Actually, all the startups are at MVP stage right now. So maybe Okay, they will not be able to answer this question yet. got it, got it. So MVP स्टेज पे भी हैं, तो उस पे मैं एक टिप आपको ये दूंगा कि स्टार्टअप के अंदर एक और हम ये करते हैं, बिफोर यू इवन हैव अ होल प्रोडक्ट और MVP, you can go and start talking to the prospect and find out who will be interested in your solution. कस्टमर वैलिडेशन, प्रोडक्ट वैलिडेशन, राइट? तो अगर आप MVP स्टेज पे भी हैं तो नथिंग स्टॉप्स यू। एक आप काफी कंपनीज को, स्टार्टअप को देखेंगे जो कि क्या करते हैं, अपना लैंडिंग पेज करते हैं और लिख देते हैं कि हे दिस फीचर और दिस सर्विस इज कमिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज साइन अप। जैसे चैट जीपीटी ने किया, या जैसे काफी डिफरेंट आपकी सोशल मीडिया की एप्स आई थी, तो बिफोर दे लॉन्च दे हैव अ वेटिंग लिस्ट, वो ईमेल कलेक्ट करना शुरू कर दिए थे उन लोगों ने, राइट? तो दैट आल्सो गिव यू little bit of this, you can start doing it, that will help you validate your idea. I think किसका, Maria आपका hands up है? That is actually very interesting because for our startup, we did validation, problem validation, customer validation by taking their interviews, asking questions. Either the problem is real or not. It is about Urdu language application. So, and we were confused about this point, like either we should just launch our landing page and let everyone know that this product is going to be launched in the mid of August and start talking about the customer or not. So this was the point where we were willing to do, but at the same time we were scared that maybe
even before the launch, the application may go down. So what do you think about that? So there are different philosophies. पहली बात अगर आप असंग की भी बात सुनेंगे, असंग ने इस बात पे काफी बिग है on the ideas are worth dime or dozen. अगर आप काफी लोग हम लोग मिस्टेक करते हैं अपने आइडिया को गार्ड करने के लिए, राइट? और होता क्या है, इट्स नॉट अबाउट द आइडिया, इट्स ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन. अगर आपने ऊपर अपनी लॉन्च भी कर दिया, दुनिया को बता भी दिया है, it all depends how fast you execute and how fast other people are executing, right? So don't be shy to put yourself out there. जितनी जल्दी आप मार्केट में जाएंगे, इवन एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, उसके अंदर they were saying the guy never launch a startup or build a product until he has 10,000 people sign up for his launch. Before he has an idea, he put a landing page, he start collecting and he see how many people are interested. So he did like 10 landing page, he found like 3 startups जिसमें काफी लोगों का interest है. Then he choose those products to start building. वो पहले build ही नहीं करता. That's another approach, right? Second thing is, I would say if you are in MVP stage और आपने उर्दू का है और आपने validation कर लिया, put it out there, start socializing. This is also a trick for the virality. Videos बनाएं, आप एड्स बना दें, hey this is coming, this is there, please sign up. इसमें एक urgency भी show कर सकते हैं आप. It's only limited version, right? Only few people will get it. जैसे Kickstarter वाले हैं, Kickstarter वाले क्या करते हैं, कुछ चीज आ रही है, they have a limited time frame, उसमें product है, you get a special discount and then you get into that product. उसमें validation भी होती है और आपको ये मिल जाएगा, yeah, now I got 1,000 or 10,000 people who really are interested in there. तो आपके अपनी लीड लिस्ट भी आ गई. जब आप लॉन्च करेंगे, those are your hot lead. Now you can work on them because now they already know, they're aware of the first funnel के लिए. They're already aware of it and you can start working with them. अच्छा जी. Someone else, what are the biggest mistake early startup make in customer acquisition? How can they avoid them? मारिया, आपका follow up question है? जी बिल्कुल. मैं बहुत क्विकली इसको वाइंड अप करूंगी. जो हमें कंफ्यूज करी एट दिस स्टेज, द थिंग दैट इज कंफ्यूजिंग अस, दैट इज वी हैव टू main services. One is through the application where they can learn phonetics and other words and other stuff. And the other option is one-on-one sessions with the customer where they're facing problem or difficulties. It may include the kids, it may include the researchers, it may include the adults who are visiting Pakistan. So the first strategy we are looking is like start one-on-one sessions so they know who we are and they may ask and have free demo sessions with us before we launch. So what do you think about this? I like that idea. That is good. That's your beta group, right? That's your beta customer before the launch. Yeah. So really good approach. I would recommend that one because अगर आपका कुछ है already and one-on-one, तो इसमें आपको ये भी नहीं होगा कि but you start promoting your product as, hey, we are available right now in the beta launch and we are giving one-on-one session. Start getting people there. और उनसे आप A/B testing कर सकते हैं, what is working, what is not, and start working on. पर उसके साथ मैं जरूर recommend करूंगा, once you do this, start building your email list from the landing page perspective. Create a landing page, start building something is coming soon. और उसको engage करते रहें, ठीक है ना? Right. So I would recommend that. Thank you. अच्छा. What are the biggest mistake early startup makes to avoid this? So this lean into our next topic actually. बिल्कुल customer acquisition. Sometimes क्या होता है, इकबाल आपने पूछा है, some startup spending, first of all they don't do the customer validation. पहले के idea उनका valid है, people are interested to buy or not. एक ये mistake होती है. तो दूसरी चीज ये product mature नहीं होती, they start selling and they start selling too early. एक ये भी होता है. तीसरी चीज, they start spending too much money and time, right, on the customer acquisition, जो कि आपका ROI जो होता है ना कस्टमर पे, गुड कस्टमर वो भी होता है और बैड भी होता है. यू एंड अप स्पेंडिंग, अगर आपने एक कस्टमर को लेने के लिए 1,000 रुपए लगाए और आप उसको 100 रुपए की चीज दे रहे हैं, तो 900 रुपए का नुकसान हो गया आपका. तो दैट लीन इनटू आवर नेक्स्ट टॉपिक कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है. सो रियली गुड क्वेश्चन इकबाल. So we'll go in there. So customer acquisition cost, CAC बोलते हैं, so CAC, right? इसका सिंपल मकसद ये है कि आपने कितना पैसा लगाया एक कस्टमर को हासिल करने के लिए, ठीक है, उस कस्टमर से हाउ मच प्रॉफिट यू आर मेकिंग. सही है. अगर जैसे कैक आपका बहुत हाई है, इट मींस यू आर लूजिंग मनी. समटाइम क्या होता है, कुछ कंपनी, बिग कंपनी हु कैन अफोर्ड, दे माइट लूज मनी ईयर 1, ईयर 2, बट दे स्टार्ट मेकिंग मनी ईयर 3. सही है. So that's the strategy every
कंपनी डू। तो गोल हमारा क्या होता है, वी कीप आवर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल एंड रेज द प्रॉफिट। जिसके अंदर जैसे हमारी आप बात कर रहे थे, जिसमें इसीलिए क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट जो आप वन ऑन वन बोले ना, दे बिकम योर लीड, और क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट दोज इंपॉर्टेंट है, उन पे टाइम लगाया जाए। जो बंदे बंदी ने जिस कंपनी ने इंटरेस्ट शो किया है ना, यू स्पेंडिंग टाइम ऑन दैट बिकॉज दैट हैज अ हाईली लाइक्लीहुड टू कन्वर्ट एज अ कस्टमर। एक बंदा है जिसको आपकी चीज चाहिए नहीं और आप उस पर पैसा खर्च करे जा रहे हैं उसको लेने के लिए। तो इसलिए टारगेटेड एड, आपको बहुत पता होना चाहिए कि आपके टारगेट मार्केट क्या है, एज क्या है, रीजन क्या है, बिजनेस क्या है, हु विल बी मोर इंटरेस्टेड इन दिस। अगर आप, काफी लोग होते हैं दे गो ब्लैंक, दे गो टू वाइड, वो इतना बड़ा फिश नेट टू वाइड करने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं एक दो फिश आ जाए, तो देयर कॉस्ट बिकम टू हायर, दैट्स द मिस्टेक दे डू। सही है? So that's those are the answer for this. So a little bit go next on to how do you calculate customer acquisition cost. सिंपल सा फार्मूला है उसका, कैक का। आपने एग्जांपल ले लें, जैसे आप कोई ऐड है फेसबुक का, गूगल का, या आपने कोई सेल्स का बंदा हायर किया, उसकी सैलरी है, राइट? यू लुक एट हाउ मच मनी यू आर स्पेंडिंग टू एक्वायर द कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल हमने 1000 रुपये पर डे के हिसाब से फेसबुक का ऐड लगाया है 10 दिन के लिए, 10,000 हमारी कॉस्ट है, ठीक है? आप उस 10,000 कॉस्ट से फर्स्ट करें, आपके पास 10 कस्टमर आए हैं, ठीक है? 10 कस्टमर आपके नए आ गए, तो आप क्या करेंगे, 10,000 को 10 कस्टमर पे आप करेंगे तो $1000 आपका वो बनता है। और आपकी अगर जो प्रोडक्ट है पर मंथ, राइट, $1000 आपका रेवेन्यू आ रहा है, पर आपको कस्टमर का कॉस्ट है, बट आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट करती है वो 5,000 करती है पर कस्टमर को, सो यू आर मेकिंग 4,000 प्रॉफिट। तो दैट्स हाउ यू सिंपल कैलकुलेट। जो भी आपकी मैट्रिक्स आ रही हैं, इसमें सेल्स है, मार्केटिंग है, सैलरीज है, पुट एवरीथिंग हाउ मच मनी यू आर स्पेंडिंग। और एज अ स्टार्टअप जब आप फंड रेज करने जाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल आस्क यू व्हाट इज योर ROI, व्हाट इज योर CAC, राइट, व्हाट इज योर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, all those kind of stuff. So make sure you write it down, you keep track of all those and do this. और इसको लो करने का आपके तरीके क्या हैं? So how you can keep this cost low, and I'll answer the question from Tahir and Shadad later, is make sure you're improving your website, SEO, SEM जैसे मैंने बात की, you are spending time on it, right? और जैसे नादिया आपने पूछा है कि ओल्ड कस्टमर को हाउ टू रिटेन द कस्टमर, तो कीप द ओल्ड कस्टमर हैप्पी। तो नादिया, इसका जो अभी मैंने पहले कमेंट दिया था, एक रोल होता है कस्टमर सक्सेस मैनेजर। तो कोई भी आप एज अ फाउंडर या अपनी टीम में से कोई एक बंदा, यू कीप दैट पर्सन, देयर फोकस इज जो कस्टमर सेल हो चुका है उनके साथ आपने कंटिन्यूस टच बेस रखना है, मंथ में एक कॉल रखनी है, वीकली में रखनी है, एंड जस्ट आस्किंग देम, और ईमेल भेजनी है, हे हाउ आर यू डूइंग, इज एनी प्रॉब्लम हैपनिंग, या आपको कोई इशू तो नहीं आ रहा। दूसरा, कस्टमर जब एक शख्स कस्टमर बन गया है और उनको कोई इशू आता है, वो सपोर्ट केस करते हैं, वो ईमेल करते हैं और वो कॉल करते हैं या टिकट ओपन करते हैं, मेक श्योर दैट इज रिस्पॉन्डेड इन द टाइमली मैनर। होता है किसी बंदे ने, कस्टमर को इशू आया है और 1 से 5 दिन तक जवाब ही नहीं दे रहा आप उसको, कस्टमर इज गोना बिकम अनहैप्पी, क्योंकि उनका बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है। तो आप सबको मैं ये दूंगा, शुरू में जब स्टार्टअप है, एवरीबडी वेयर्स द डिफरेंट हैट, you someone should be also responsible looking at all the existing new customer, सही है? और अगर आप नए और उनको मंथली, वीकली, वट एवर केडेंस यू आर, एक टच बेस कर रहे हैं, कीपिंग देम हैप्पी, कोई कस्टमर का इवेंट कर रहे हैं, रिकॉग्नाइजिंग द कस्टमर, आस्किंग देम टू डू द टेस्टिमोनियल फॉर यू, राइट नाउ so many things are free, man. आप सिंपल एक कस्टमर को लो, उनके पिक्चर लें, उनका टेस्टिमोनियल है, वेबसाइट पे शोकेस कर दें, एक वीडियो बनाए, उनका इंटरव्यू लें और वेबसाइट पे शोकेस कर दें, उनकी अपनी ब्रांड बन रही है। आप लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी पोस्ट करें, कस्टमर को टैग करें, उनको हाईलाइट करें, दे विल बी हैप्पी, एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट द रिकॉग्निशन, राइट? तो those are some small easiest way that you can do that, राइट? टारगेट ऐड करें, जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को लो करने के लिए, have a copyright register, then is it viable? Okay, I'll talk about that one too. Second question, कि ad को टारगेट करना ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो, that's how you keep your customer acquisition cost low. ईमेल है, चैट है, एडवर्टाइजिंग, कोशिश करें इनको ऑटोमेट करें। आजकल AI आ गई है, AI से, और एक चीज मैं आपको लाजमी बोलूंगा, यूज AI इन योर डे टू डे लाइफ, चैट GPT, एंथ्रोपिक है, क्लाउड है, कीप योरसेल्फ अप टू डेट, स्पेशली ऑल द स्टार्टअप जो अभी है ना, आप लोगों के लिए मैं ऑनेस्टली बताऊं, इज एन इम्पेरेटिव आप सबके लिए
कि you guys are up to date on all the things on AI, what is happening in the industry, and you guys are playing with all the AI application every day. Each one of you who are a startup, आपके मोबाइल पे 3 से 4 AI की एप्स होनी चाहिए जो आप डेली यूज करें, एवरीडे बिजनेस में यूज करें. आप कोई भी मैसेज, कोई भी ईमेल भेज रहे हैं, यूज AI टू रिफाइन योर मैसेज. ठीक है, ऑटोमेट करें टास्क को. जैसे किसी ने आपकी वेबसाइट पे गया, उसने कॉन्टेक्ट फॉर्म भरा, तो ऑटोमेटिकली थैंक यू ईमेल चली जानी चाहिए. यू शुड नॉट वेट विद द लिंक विद द वीडियो टू हैव देम लर्न मोर. आपने चैटबॉट डाला हुआ है, तो समवन शुड बी, आजकल AI चैटबॉट्स हैं, दे कैन रिस्पॉन्ड टू देम. आप उनको कस्टम रैक पे ट्रेन कर सकते हैं. All of these things you should do from that perspective to keep your customer acquisition cost low. Now, before I go to sharing resources, there are a couple of questions जो मैं आपको आंसर करता हूँ. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नादिया का दीदी, अस्मा शाहिद काजी साहब का, कि what if we launch our app and don't have copyright registered till then, is it viable? बिल्कुल. Don't worry about the copyright thing. It depends on the nature of the idea, also nature of the content, what's your copywriting. अगर एक ये बुक है, that's a different thing, right? तो आज का आपको पता है कि आइडिया शेयर करने से स्टील होने के बाद भी यू पर्सनली, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं मेरा आइडिया बहुत नोबल है कि आज तक किसी ने सोचा ही नहीं है. ठीक है ना, और मैं शेयर करूंगा, ये करूंगी तो ये चोरी हो जाएगा, कोई और बंदा बना लेगा. इट्स ऑल अबाउट, आई एम टेलिंग यू अबाउट द एग्जीक्यूशन. आई कैन सेंड यू वेबसाइट जहां पे कुछ लोग हैं, दे आर ओपनली शेयरिंग थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज, इज लिस्टेड देयर. दे आर आस्किंग पीपल टू जस्ट गो एंड पिक ऑन इट, राइट? तो आइडिया आपका है, डोंट वरी अबाउट द रजिस्टर. इफ यू कैन डू इट, डू इट. इफ नॉट, डोंट शेयर एवरीथिंग ना. अपना सीक्रेट सॉस है वो शेयर नहीं करें, but you need to make people aware of what you're doing, right? Get the interest, build your email list, build your prospect list, build the people who are interested. जैसे मारिया बोले थे 101 करेंगे, get those people your better customer. अगर it all depends अस्मा कि आपकी टीम क्या है और how fast you can execute. मैं आपको अभी मैं 10 आइडिया आप लोगों को सबको दे देता हूँ. I can bet only 1 या 2 बंदे होंगे, मैं 10 में से कोई एक उस पर काम करेगा, क्योंकि टाइम नहीं लोगे. बस हर बंदा बिजी चल रहा है, और इसीलिए बड़ी कंपनीज दे आर वेरी स्लो, बिकॉज इन ऑर्डर टू डू समथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश एंड प्रोडक्शन रेडी टेक्स टाइम. तो इसीलिए जो स्टार्टअप होते हैं, दे एग्जीक्यूट फास्ट एंड दे गो टू मार्केट इज फास्टर देन बिग कंपनी. बिग कंपनी में काफी वो आपकी लेयर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, ऑल दो. दैट्स व्हाई स्टार्टअप ग्रो फास्टर देन बिग कंपनीज शुरू में. सो आई विल से गो अहेड एंड डू इट, डोंट वरी अबाउट इट. एंड देन सेकंड क्वेश्चन इज, I seen a video where the company identity has been stolen. Company identity is different. Someone, वो तो आप उसको बोल देंगे, claim कर दें कोई, someone is pretend to be like you. That is a different thing, not about the idea. मैं खुद कितने आइडियाज शेयर करके कर सकूँ. कुछ आइडिया मेरे पास अपनी लिस्ट में 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मैंने उन पर काम ही नहीं किया. Where the human I have 24 hours only, right? एमन ने पूछा है, if we use AI tool, then is there any issue for copywriting? So कॉपीराइटिंग का इशू नहीं है एआई में. अगर आप नोट करें का अब काफी चीजें लीगली यहाँ पे भी, इफ यू आर यूजिंग एआई टू, बिकॉज एआई इज ट्रेंड, इज जनरेटिंग द न्यू आउटपुट. मेरी आपको मशवरा ये होगा मेरा कि एआई को एज अ असिस्टेंट यूज करें. डोंट जस्ट ब्लाइंडली यूज द एआई के, एआई ने जो आपको दे दिया, क्योंकि वो हेलुसिनेट कर सकती है एआई. ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन दे सकती है. तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ, आपके जहन में कुछ आ रहा है, पहले अपना ड्राफ्ट लिख लें, या इस तरह मैं बयान करना चाहता हूं कोई भी चीज, जब करने लिखना चाहता हूं, एंड देन यू गिव इट एआई टू रिफाइन इट, राइट? एंड फिर एआई के आउटपुट को एआई से बोलें द्वारा क्रिटिक करें, इंप्रूव करें. फिर आप उसको रिव्यू करें, देखें कहां पे एडजस्टमेंट है. ह्यूमन एडजस्टमेंट हो सकती है, ह्यूमन इन द लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उसमें एडजस्टमेंट करें, उसको डिफरेंट टूल से आप क्या करें, चेक करें कि इट बिकम द not the AI generated thing, and use that for your whatever thing that you're using. It will not have any issue with the copywriting. I'm working with I hope, Eamon, I answered your question there. Yes, sir. Thank you so much. Right. I think आपने दोबारा पूछा है, I'm working on a smart energy optimizer startup. Can you guide me on generating leads and recommended tools for quick responses? तो वो जो मैंने अभी शुरू में बात की है, Eamon, those are the things. First thing first, have a website, have a YouTube, have a social media presence, have a Google Workspace account. Every single startup who is in the MVP stage, 4 बंदे 3 बंदे जो भी काम कर रहे हैं, गूगल वर्कस्पेस का अकाउंट एक पहले सबसे पहले $1 का आता है डोमेन, 275 रुपए का एक डोमेन ले लें अपना जो भी स्टार्टअप उसके नाम पे.
नाम पे ज्यादा टाइम लगाएं, जो भी नाम है उसका एक डोमेन ले लें, जाके $10 पर मंथ पे गूगल वर्कस्पेस का एक अकाउंट ले लें, उससे आपके डोमेन का आपको ईमेल मिल जाएगा, ठीक है, होस्टिंग का अपना कर लें आप। ना उसके बाद क्या करें, सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाएं, पहले विक्स पे फ्री वाली ले लें, कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म बनाए, आपने कस्टमर कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाए और हर सोशल मीडिया पे जाके अपनी प्रेजेंस कर दें, अपना लोगो बना लें, सिंपल सा आप क्या कैनवा यूज करें, छोटा सा लोगो 5 मिनट में बन जाता है, एआई यूज करें, चैट जीपीटी, लोगो वीडियोस, इसीलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं एआई यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यू कैन एग्जीक्यूट वे फास्टर। इंडस्ट्री में बात हो रही है, देयर विल बी 1% यूनिकॉर्न मीन $1 billion कंपनी रन बाय 1% ओनली। तो पाकिस्तान के आप लोग जितने बच्चे हैं, आप लोग के लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है अभी, विद ऑल दी सेशन जो आपको एस्पायर के अंदर दिए जा रहे हैं, ये आपकी सारी फाउंडेशन है कि क्या क्या एज अ ग्रो होगा बिजनेस, ये सारी चीजें आपको जब काम आएंगी, ठीक है। पर राइट नाउ एग्जीक्यूशन, आपकी ऑनलाइन सोशल प्रेजेंस, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट पीपल नो हु यू आर, व्हाट यू आर ऑफरिंग, डोंट वरी अबाउट द कंपटीशन। 10 बंदे और कर रहे हैं, आप शार्क टैंक इंडिया देख लें, जो आप आइडिया बोले मे बी ऑलरेडी पिच हो चुका है, 3 सीजन हो चुके हैं उसके। आप शार्क टैंक यूएस का देख लें, 14 सीजन चल रहा है। There's so many opportunities are there. It's all about the execution, value proposition, आपका differentiation वहां पे क्या है, focus on that, ठीक है। और उसको लॉन्च करने के लिए सारी जगह सोशल मीडिया प्रेजेंस करें एंड बी एक्टिव एंड कंसिस्टेंट ऑन दैट सोशल मीडिया एंड द वेब प्रेजेंस। जो आपने अमन बोला ना किस तरह स्टार्ट करना है, मेक श्योर you are putting videos, you are putting Instagram, you are putting TikTok, you are sharing in your network of WhatsApp and be consistent on it। ऐसा नहीं एक दिन किया फिर आप 6 महीने बाद कर रहे हैं दोबारा, ठीक है। तो मेक श्योर यू आर डूइंग इट कंसिस्टेंट बेसिस एंड कीपिंग द इंफॉर्मेशन, इट विल बिल्ड। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, यूट्यूब की वो जो फेमस यूट्यूब है अपना मिस्टर बीस, ही से you need to at least have 100 videos before your channel will even pick up। अगर कोई यूट्यूब कंटेंट यूट्यूबर बनना चाहता है, अगर वो बोलता है मुझे 5 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं आया, मेरा 5 वीडियो डाल दी, नथिंग विल हैपन। 100 videos at least, and each video you're improving, so you are 100 times improving in each video. After that you will start seeing the difference, so it takes time, be patient, so yeah, so that's how you can get started। Good question, so thank you Eman, Maria, and I think last time Asma asking these questions. Any other question before I go and share you what are the next steps? अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आया शायद न्यू मैसेज। No, okay, cool, all right, in the interest of time we'll go next। तो आज का जो सेशन था, इसमें बताने का मकसद ये था क्योंकि आप हर हफ्ते एक डिफरेंट सेशन ले रहे हैं, there's a lot of information fed to you and as a young kid startup is a lot, I can understand, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो इस सेशन को मैंने मीनिंगफुली शॉर्ट रखा, जस्ट टू गिव यू द बेसिक कॉन्सेप्ट कि कस्टमर एक्विजिशन क्या होती है, एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है, एक्वायर करने के स्टेप्स क्या होते हैं, उसके अंदर क्या इन्वॉल्व है। इज नॉट अ रॉकेट साइंस, सिंपल चीज है। डेक विल बी शेयर्ड विथ यू, फॉलो द स्टेप एंड डू दिस, एंड देन वंस यू आर रेडी एंड यू वांट टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, here are some free courses। अच्छी बात ये है कि आजकल की दुनिया में so much information is available to your fingertips, सही है। सुलेमान, मैं आपका जवाब देता हूँ क्लाउड और उसका। सो ऑनलाइन स्ट्रक्चर लर्निंग आपने अगर करनी है, जैसे आज के सेशन के बाद गूगल का कोर्स है, कोर्सेरा पे है, स्टैनफोर्ड का है, लॉट ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑन जस्ट दिस टॉपिक। जैसे एमन आपने पूछा हाउ टू आई गेट स्टार्टेड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स है हाउ टू गेट यूजर्स एंड ग्रो, right there, information is right there, right? So you will see that from that perspective. All the links are on the in the deck, we will share the deck with you। तो ये तो start with that one। आपका क्वेश्चन है सुलेमान, चैट जीपीटी और क्लाउड कौन सा बेटर है। सो मेरा एक मैंने कभी जो है ई बुक लिखी है, उसमें वेबसाइट पे आई विल गिव यू गाइस द लिंक, फील फ्री टू, फ्री में ई बुक है और उसके अंदर जो है मैंने AI pocket guide। First of all, use any one of them is good for you, right? Don't worry about which one। Claude is really good in writing। इधर से फ्री कर लें आप एक ई बुक, मैंने फ्री ब्लॉग और ई बुक लिखी है, it does the comparison for all the different tools। मैं चैट में लिख के भेज रहा हूँ, feel free to, आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे ये करें। एंड चैट जीपीटी
डिपेंडिंग ऑन अगर आपका पेड अकाउंट नहीं है किसी भी इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हाईली रिकमेंड आप में द टीम, भले जब तक आप कोहार्ट में 2 महीने 3 महीने $20 का चैट जीपीटी का है या क्लाउड का $20 का है, पैसे जमा करें और 3 महीने के लिए सिर्फ बजट रखें, 3 महीने के लिए पेड अकाउंट ले लें, ताकि आप लेटेस्ट टूल्स को देख सकें और यूज कर सकें, सही है। और Claude is really good with research and writing from that perspective. ChatGPT, depending on O3 model, is really good from deep research, and O4 जो इसका चल रहा है, फ्री में कुछ लिमिटेशंस हैं। क्लाउड का क्लाउड कोड जो है बहुत अच्छा है, क्लाउड कोड जो है ना डेवलपमेंट के लिहाज से, बिल्डिंग के लिहाज से बहुत अच्छी चीज है जो आप लोग यूज कर सकते हैं। तो दैट्स द आंसर फॉर सलेमान फॉर दैट वन। ठीक है, और ये मैंने आपको जो ब्लॉग का लिंक दिया, इट हैज ऑल द कंपैरिजन एंड ऑल दोस, एंड डाउनलोड दैट ई बुक एंड शेयर विद योर नेटवर्क, यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन देयर। उस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, watch that half an hour video, that will help you. अच्छा, let's go forward also. People who likes to read, there's some really good books. Traction के नाम से एक book है, you can buy, you can download e-copy for that one. This is marketing के नाम से एक book है, Contagious के नाम से book है, get those book. There's some blog मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, Shopify का e-commerce का एक blog है, कोई startup उस पे काम कर रहा है, right? From that perspective, use those. So a lot of resources available for you guys that you can do and read about it. So now at the end, मेन मैसेज मेरा ये है, काफी लोग स्टिंजी होते हैं कॉस्ट या मनी स्पेंड करने पे टू गेट द कस्टमर। जैसे यार इससे क्या है, फिलहाल में हम सेल्स एंड मार्केटिंग में क्यों पैसा खर्च करें? सेल्स एंड मार्केटिंग इज द इंजन दैट ड्राइव योर बिजनेस। सो थिंक ऑफ दिस एज एन इन्वेस्टमेंट। जैसे मैं ये नहीं बोला आप वाइल्ड वेस्ट चले जाएं, आपको जैसे मैंने अभी टेक्निक्स बताई हैं, यू हैव टू बी वेरी टारगेटेड, वेरी माइंडफुल वेयर यू आर स्पेंडिंग मनी, हाउ मच यू आर स्पेंडिंग, हाउ मच मनी यू आर स्पेंडिंग, ठीक है। एंड थिंक ऑफ एज एन इन्वेस्टमेंट। आप बोले यार हम 5,000 रुपए रखते हैं इस महीने के, 10,000 नेक्स्ट महीने के, इस तरह इन्वेस्ट करेंगे, इन टूल पे इन्वेस्ट करेंगे, ये चैट जीपीटी लेना है, ये चीजें हमें करनी है। डू दैट, यू हैव all the tools available right now to grow your customer base. Social media है, inside है, and also do the measurement. What is working, what is not working. Don't blindly आप ये नहीं करें, ऐड पे ऐड डालते जा रहे हैं और कस्टमर कोई आ नहीं रहा, कोई क्लिक ही नहीं कर रहा। डाला ऐड, स्टॉप किया, देखा व्हाट्स द रिजल्ट, मेजर किया, रिफाइन किया, इंप्रूव किया, एंड गो फ्रॉम देयर। यूज चैट जीपीटी और क्लाउड। आपको कोई भी एक ऐड बनाना है, उसको यूज करें, उसका रिजल्ट उधर शेयर करें, से व्हाट कैन बी इंप्रूव, डू दैट वन, ठीक है। सो डू ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। विद दैट, thank you again for everyone. This is again my website, Kashi Ahmed. Scan the QR code. Aspire community का सब member हैं, right? Do the attendance for the Azhar ने जो भेजा है. If you have, we have last 10 minutes. Any other question? Happy to answer about customer acquisition or about AI. I'm very bullish on AI. So inshallah we will do a session about AI. जो मैंने अभी blog दिया उस पे जो session है, we will do one session for all the Aspire audience as a virtual session as well. So you guys can join us there as well. But if you have any other question, happy to answer for next 10 minutes. ऑल राइट सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और आप सर जिस तरह अपने कोर्सेज के हवाले से जिक्र कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर शेयर कर दूं कि आपका सर व्हाट्सएप पे जो चैनल है उसका लिंक भी डाल लें, ताकि उन लोगों को अपडेट भी आते रहे। और आप जो माशाल्लाह एआई पे काम कर रहे हैं, जो नीड ऑफ द डे है, तो वी आर रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। और आपने जो ऑफर किया अभी, तो इसी के लिए भी हम इंशाल्लाह एक सेशन अरेंज कर देंगे जरूर। Now we are moving towards the Q&A session. If anyone has any question, just raise your hand. We will take that.